Hello everyone, welcome to One Digits podcast series. Today we will talk about how you can save about up to 2 lakh rupees, 2 लाख रुपए हर साल in taxes. कैसे हम बचाएंगे? Well, let's start with it. Okay? There is a provision in income tax which is called HUF, Hindu Undivided Family. Now, what does it give you? It gives you a couple of things. You can move your entire business there. And this business is considered different from what your profession and your wife's profession. So essentially, what you do is you have created, for a family of 2, you have created 3 PAN cards now. Okay, one for you, one for your spouse, and one for your HUF. And all the 3 PAN cards will have increasing level of income taxes. That means that the initial 2-3 lakh rupees of income is hardly taxed. Then you start with 5% taxes, then you start with 10% taxes, और कर आके then you reach up with you go as high as 30% tax slab. So if you divide the income rather than dividing it into 2 slabs, now you're dividing into 3 bundles. So by dividing into 3 bundles, you are able to save about 1.5 lakh rupees of taxes. Okay, isn't that good enough? Well, let me give you another incentive. There is a provision called ETC in the income tax, which allows you to save up to 1.5 lakh rupees every year. Now, for an earning professional, that is not much of an amount because thousands of things comes into ETC. Your employee EPF, Employee Provident Fund, comes into that. If you have bought any LIC, the premium that you have paid comes into that. The principal portion of your house rent, any house mortgage, that comes into that. इतनी सारी चीजें आ जाती हैं कि उसके बाद उस ETC में कुछ बचता ही नहीं है. लेकिन जब आपके पास एक नया पैन कार्ड आ जाता है, एक नया ETC आ जाता है, तो फिर से वहां पे तो जीरो से फिर से आपकी रेस स्टार्ट होती है. तो आपने वहां पे 30-40 हजार रुपये और बचा लिए. Isn't that wonderful? Well, let me give you more things. Okay? Now suppose you are an employed freelancer. Okay? US में हम लोग इसको हसल बोलते हैं. हसल मीन्स आप इंडिया में कुछ लोग इसको मूनशाइन भी बोलते हैं, which means आपके पास एक रेगुलर जॉब है, लेकिन in your spare time, in your free time, in your downtime, in your weekends, you plan to pursue something which is a little bit more economically generating, which will help you supplement your incomes, which will help you buy that large car that you wanted to buy, go on that vacation that you wanted to go on. आपने अपने or just save for the future. So in that case, what are the options you have? First thing, which everybody tells you, open up your company. Well, the moment you open up your company, you become a director to that company. Now, if you become a director to your company, then the problem is it will go in direct competition with your employment contract, because in the employment contract, it will clearly say that you cannot become director in your company. You cannot be gainfully employed in any business. However, उसमें एक छोटा सा एक क्लॉज होता है कि the family business, non-conflicting family business, which means that as long as you are not competing with your employer, you are not soliciting the suppliers, the employees, the customers, the competition, those kinds of things. As long as you are able to keep your professional run and your freelancing run separate, then it can be categorized as a family business, and it will benefit you in keeping those rent separate and you becoming a karta. So इसमें आप डायरेक्टर नहीं बनते, इसमें आप कर्ता बनते हो HUF में, but it is one of the same thing. So you become the owner of an HUF, you become the manager of an HUF, and you are able to drive it. So आपका conflict of employment it is able to reduce that. It is not able to eliminate it completely, but is able to reduce that. You want to know more about it? Well, let me talk something more about it. ठीक है, आपने तो ये कर दिया. Next thing is, if you have read the book called Rich Dad Poor Dad, it's an amazing book. It talks about how an employee is always going to be poorer than an employer or a business person. Why? Very simple. अभी क्या होता है कि आपको 100 रुपए की सैलरी मिलती है. 100 रुपए की सैलरी में से 30% आपको इनकम टैक्स देना पड़ता है. आपके पास 70 रुपए बचते हैं. 70 रुपए में से हाउस रेंट देंगे, मेडिकल एक्सपेंस देंगे, ट्यूशन फीस देंगे, आपके पेट्रोल चार्जेस, पेट्रोल की बहुत हो गए, तो आपके 50 रुपए और निकल गए. हार्डली आपके पास 20 रुपए बचते हैं. सेम सैलरी, सेम इनकम, वो सब है.
लेकिन अगर आपने एज रादर देन बीइंग एन एम्प्लॉय आपने फ्रीलांसर में चले गए, आपने एचयूएफ के थ्रू किया। एचयूएफ इज अलाउड टू हैव बिजनेस एक्सपेंसेस। वेल व्हाट डज इट मीन? वेल द बिजनेस एक्सपेंसेस मीन दैट आपने जो आपने 100 रुपए की जो आपने इनकम कमाई, 100 रुपए जो रेवेन्यू कमाया, आपको 100 रुपए पे आपको इनकम टैक्स नहीं देना है। पहले उससे आपको अपने खर्चे निकालने, अपने एक्सपेंसेस निकालने। तो आपने 50 रुपए के एक्सपेंसेस निकाल दिए इसमें से। 50 रुपए के एक्सपेंसेस निकालने के बाद आपके पास 50 रुपए बचे। उस 50 रुपए में से आपने इनकम टैक्स भरा। तो रादर देन पेइंग दैट फुल 30 रुपीज ऑफ इनकम टैक्स, अब आपको 15 रुपए का इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। वो 15 रुपए भी रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था ना, एचयूएफ से एक नया पैन कार्ड आ जाता है, रिड्यूस हो जाता है, बट हम लोग उसमें अभी घुस नहीं रहे। तो आपको 15 रुपए का आपने इनकम टैक्स भरा, तो आपके पास बचे 35 रुपए। पहले कितने बचे थे आपके पास? 20 रुपए, अभी बचे 35 रुपए, 15 रुपए, 15% एक्स्ट्रा। सो दिस इज द एडिशनल बेनिफिट टू इट। उसके अलावा हमने और बात किया था कि देयर इज समथिंग कॉल्ड इन्वेस्टमेंट इनकम। सो एचयूएफ खोलने से एक और आपको बेनिफिट आ जाता है कि क्या होता है, हम लोग सभी लोगों की म्यूचुअल फंड की इनकम आती है, स्टॉक मार्केट में थोड़ा बहुत करते हैं, हमने कुछ ना कुछ एफडीज हमने बना के रखी हुई थी ना। इन सब की एफडी की इनकम होती है। एफडी में अभी 6% मिलता नहीं है, लेकिन फॉर कंपटीशन से हम 6% की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सपोज आपने 1 लाख की एफडी कर ली, उसमें से 6,000 रुपये होता है, लेकिन 6,000 रुपये में से आपका टीडीएस कट जाता है, और बाकी भी जो अमाउंट होता है वो आपके इनकम टैक्स में आपको डिक्लेयर करना पड़ता है, बिकॉज इट्स अ डिजिटल करेंसी, डिजिटल पेमेंट्स होती हैं। तो आपने उसको इनकम टैक्स में आपको डिक्लेयर कर दिया, तो 6,000 में आपने 2,000 रुपये का आपको उसमें टैक्स 30% आपको टैक्स देना पड़ गया, तो आपके बच्चे आपके 4,000 रुपये। तो यानी आप बैंक ने आपको कहा कि आपको 6% देगा, लेकिन आपके हाथ में 4% इंटरेस्ट आया, ये कम हो गया। उसमें से आपने अगर इन्फ्लेशन निकाल दिया तो उसके बाद तो आपको नेगेटिव रिटर्न्स आते हैं। लेकिन अगर आपने उसको एचयूएफ में मूव कर लिया, एचयूएफ में जैसे मैंने बात किया था कि आपका स्टार्टिंग से 0 से स्लैब आपका फिर से स्टार्ट होता है। पहले आपका, क्योंकि आपको प्रोफेशनल इनकम आ रही है, आपकी अपनी से इनकम्स आ रही हैं, तो उसके कारण से आपका ऑलरेडी आप सैचुरेटेड हैं, आप इनकम टैक्स में आ चुके हैं। 1 डिजिट में जितने भी आते हैं, मोस्ट ऑफ देम आर इन द 30% स्लैब, सम ऑफ देम आर अर्निंग इन सो मच दैट दे नीड टू बी कंपल्सरी ऑडिटेड एज वेल। सो वी आर ट्राइंग टू टारगेट इनटू हाई नेटवर्थ प्रोफेशनल्स एंड फ्रीलांसर्स। कमिंग बैक, तो आपने जब आपने एचयूएफ खोला तो उसमें आपको 0 से आपका फिर से स्टार्ट किया, तो आपने अपनी नॉन प्रोफेशनल इनकम उधर मूव कर ली। तो नॉन प्रोफेशनल इनकम क्या हो जाती है, आप अपनी थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज उधर मूव कर सकते हो। तो प्रॉपर्टी से अगर आपको रेंटल इनकम आती है, अगर आप अपने स्टॉक मार्केट उधर मूव कर सकते हो, आप अपने इंश्योरेंस उधर मूव कर सकते हो, आपने अपना इंटरेस्ट उधर मूव कर सकते हो। सो फिक्स डिपॉजिट्स आपने मूव कर लिया। सो ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं नॉन प्रोफेशनल इनकम में, आपने उधर मूव कर लिया, तो उसको आपको फायदा क्या होगा कि फिर से आपको टैक्स स्लैब होता है। तो जो आपने 6% पे जो आपका जो 2% आपका 2% इनकम टैक्स ले गया, बाकी 4-4.5% की आपकी इन्फ्लेशन आके आपको नेगेटिव 0.5% आपको रिटर्न्स आ रहे थे, उसकी जगह आपको 6% आपका पूरा बच गया। Isn't that great enough for you? राइट? अभी आपका जो बैंक में जो पैसा था वो आपका रिड्यूस हो रहा था, क्योंकि इन्फ्लेशन उसको खा रहा था, इनकम टैक्स उसको खा रहा था, बट अभी हमने एटलीस्ट इनकम टैक्स उसको खाने से आपको बचा लिया। सो दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। एक और एडिशनल बेनिफिट मैं आपको बात करना चाह रहा हूँ, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। दिस इज समथिंग कॉल्ड 44AD। So HUF is allowed to be categorized as an individual and it's able to take benefits of 44AD. What does it mean? 44AD means it's a very simple income tax provision for small businesses, small freelancers, which allows you to claim to show presumptive income tax. Presumptive income का मतलब ये होता है कि you do not need to maintain a fully audited books of account. So it saves you on the audit fees. It also allows you, because आप presumptive जब आप कर रहे हो तो इसमें आप अपने expenses, you don't have to hunt around getting all the expenses receipts। हमारे काफ़ी सारे होते हैं कि काफ़ी एक्सपेंसेस हमने किए जिसकी रसीद दी भी नहीं, कच्चे एक्सपेंसेस हो जाते हैं, हमें उसकी रसीद नहीं मिल पाती। बट यहाँ पे आपको वो सब करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो योर इनकम वुड बी ओनली 50%, यानी आपने 50 लाख की अगर सर्विसेज की तो ये इनकम वुड बी 25 लाख, और आपको उस 25 लाख पे आपको इनकम टैक्स भरना है। अगर आप हैंडीक्राफ्ट्स का बिजनेस कर रहे हैं, आप फूड का बिजनेस कर रहे हैं, ज्वेलरी, बुटीक, a lot of these small entrepreneurs have opened up during this COVID time। अगर उन सब के लिए तो और भी ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है। फॉर एनी कैश रिसीप्ट्स
जो जिसकी भी पेमेंट इन कैश हुई है उस पर उनको 8% उनकी प्रेजेंटिव इनकम होती है। और जो डिजिटल पेमेंट है मोस्ट ऑफ देम आजकल गूगल पे, फोन पे उस पर होती है, उस पर तो उनको 6% देना पड़ता है। यानी अगर उन्होंने 2 करोड़ मीन्स 16-17 लाख रुपए हर महीने का उनका टर्नओवर आ रहा है, तो उसके 2 करोड़ के ऊपर आपको सिर्फ 6 लाख रुपए का इनकम दिखाना पड़ रहा है। 6 इंटू 2 12 लाख का इनकम दिखाना पड़ रहा है। Isn't that something great enough? अब आप मुझे बताइए कि 1 करोड़ 90 लाख का आपको बिजनेस एक्सपेंसेस दिखाने में आपको एफर्ट मारनी पड़ेगी, लेकिन दिस विल बेनिफिट यू। ऑल दीज बेनिफिट्स आर नॉट गिवन टू द कंपनी। अगर आप अपने सीए के पास जाएंगे, आप ऑनलाइन फॉर्म्स में देंगे, ऑल ऑफ देम वो कहते हैं आप एलएलसी खोलिए, आप एलएलपी खोलिए, इतने फैंसी टर्म्स बोलते हैं, बट आप उनको ये नहीं बताते हैं कि देर इज अ लॉट ऑफ कॉस्ट, देर इज क्लोज टू 25,000 रुपीज वर्थ ऑफ एनुअल एक्सपेंसेस rather than the incorporation cost. Incorporation cost is pretty expensive क्योंकि आपको डिजिटल सिग्नेचर लेने पड़ते हैं, आपको बैंक अकाउंट्स खोलने पड़ते हैं, आपको स्पाइस जो है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के फीस देनी पड़ती है, आपको एक ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ता है, आपको कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करना पड़ता है, आपको अपने सारे बुक्स को अकाउंट करके आपको उसको प्रॉपर आपके बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स ये सब बनानी पड़ती हैं। ऑल दीज आर अ लॉट ऑफ एफर्ट, आपको ये सब करना पड़ता है और इसका आपको खर्चा भी देना पड़ता है, इसका आपको टाइम भी देना पड़ता है। बट इन द प्रिजम्पटिव इनकम टैक्स 44AD आपको ऑल दिस विल गो अवे। एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट फ्यू ईयर्स जब आपका बिजनेस आपको जस्ट स्टैब्लिश ही हो रहा है, यू आर नॉट इवन श्योर कि आपको जॉब करनी है, कि आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, कि आपको दोनों चीज़ें एक साथ आप कर रहे हैं, यू आर बैलेंसिंग एंड जगलिंग सो मेनी थिंग्स, यू आर ट्राइंग टू ट्रांजिशन फ्रॉम अ वेरी रेगुलर सर्विस लाइफ जो आपने देखी है, जो आपके पेरेंट्स ने देखी है, टू अप्स एंड डाउन्स ऑफ अ फ्रीलांसर लाइफ। और उसके अंदर भी आपको और एडिशनल कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं, दैट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। सो वन डिजिट इज देयर टू हेल्प यू आउट, इट इज योर फ्रेंड, इट इज योर पार्टनर टू डू ऑल दोज थिंग्स फॉर यू। वी आर देयर टू हेल्प यू सेव टैक्सेस, टू बी मोर लीगल, टू बी मोर कंप्लायंट एंड टू बी मोर हैप्पी इन योर लाइफ। हैव योर केक एंड ईट इट टू। आपके पैसे भी बच रहे हैं, आपका टाइम भी बच रहा है, आपको वैल्यूएबल एडवाइस मिल रही है, and in things that are not related to your core business, that are your headaches. Because आपको क्या करना चाहिए एज अ फ्रीलांसर, what you should be worried कि आपको नए प्रोडक्ट्स क्या होने चाहिए, नए फीचर्स क्या होने चाहिए, कंपटीशन क्या कर रहा है, आपको हाउ डू यू रीच आउट टू मोर पीपल, आप मार्केटिंग कैसे करेंगे, आप उनकी डिलीवरी कैसे करेंगे, आप कस्टमर सेटिस्फैक्शन कैसे करेंगे। दीज आर योर कोर थिंग्स। आपको क्या अकाउंटिंग करनी है, क्या इनकम टैक्स भरना है, क्या जीएसटी भरना है, कैसे कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना है, बैंक अकाउंट का क्या करना है, आपको एफआईआरसी, फॉरेन रिमिटेंसेस कैसे हैंडल करने हैं, इनवॉइसिंग कैसे करनी, दीज आर नॉट योर कोर थिंग्स। ये आप वन डिजिट को दे दीजिए so that you can focus on things that matter to you, that will make you from a simple small business to one of the unicorns of the world, to a $1 billion valuation company. We are there to help you out. So these are there. Now let's talk about a little bit of technicalities, right? How do you, are you eligible for an HUF? Well, बहुत ही simple सा काम है इसमें. You can go to the income tax website. वहाँ पे पैन कार्ड एप्लीकेशन पे आप चले जाएंगे तो उधर आपको मिल जाएगा, आपको HUF का फॉर्म मिल जाएगा। अगर आपको इतना मेहनत नहीं करनी है, आप वन डिजिट में चले जाइए, वहाँ पे एक बहुत सिंपल सा इंटरफेस है, दे विल आस्क यू अ कपल ऑफ क्वेश्चंस एंड वो आपका फॉर्म प्री पॉपुलेट करके आपको कुरियर कर देंगे और आपको बस उस पर साइन करना है और उसको भेजना है, आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं। नाउ टू बी एलिजिबल फॉर HUF उसमें कुछ है, एक तो फर्स्ट इज देयर इज अ रिलीजन, बिकॉज HUF इज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, सो देयर इज अ रिलीजन कंस्ट्रेंट देयर। सो हिंदू, सिख्स, जैन्स, क्रिश्चियंस, these are the people who are allowed to open up an HUF. आप अपने एलिजिबिलिटी वहाँ पे चेक कर लीजिएगा। If you are eligible, then you can open up and you should open up. दूसरी चीज़ होती है कि HUF gets incorporated at the time of marriage because it's an undivided family. It's a family income, family business that we're talking about. तो जैसे ही आप मैरिड होते हैं तो आपकी HUF बन जाती है, बट आपको फिर भी एक एफिडेविट चाहिए होता है, एक मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए होता है, और एफिडेविट 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पे आप एफिडेविट अपना बनवा सकते हैं, तो आपको वो चाहिए बस, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं चाहिए। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेंगे आप, डिजिटली आप अपलोड कर लीजिए एंड वन डिजिट विल टेक केयर ऑफ इट। सो दिस इज योर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। हाउ मच डज इट कॉस्ट? वेल, आई विल बी सरप्राइज्ड,
ठीक है। आपको कंपनी खोलने में कोई भी आपको 10 से 15 हज़ार रुपये का वो कोड देगा, उसके बाद वो कहेगा सर आपको डिजिटल सिग्नेचर चाहिए, उसके अलग से लेके आपको ऑडिटर एम्प्लॉय करना होगा, आपको शेयर सर्टिफिकेट इशू करना होगा, आपको ROC की कंप्लाइंस भरनी पड़ेगी, आपको GST की कंप्लाइंस भरनी पड़ेगी, 1000 चीज़ें आपको करनी पड़ती है, लॉट ऑफ वर्क। एज कम्पेयर टू दैट एक HUF करने के लिए आपको एक सिंपल से एक एफिडेविट चाहिए, एक मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए, अपने वाइफ का सिग्नेचर चाहिए, अपना सिग्नेचर चाहिए। ये 4 सिग्नेचर लेके, ये सारी 4 चीज़ें लेके आपको डिजिटली अपलोड करिएगा। हम लोग आपका फॉर्म बना के आपके पैन कार्ड ऑफिस में भेज देंगे, आपका पैन कार्ड आ जाएगा एंड वही डॉक्यूमेंट्स लेके हम आपका बैंक अकाउंट खुलवा लेंगे एंड योर HUF इज अप एंड रेडी। It can do international business, it can do small businesses, it can do large businesses, it can do anything that you want to do. So this is the simple way of how to open. Now when should you open? Well, मैं कहता हूँ कि जैसे आप शादी करते हो तो शादी करने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, आपको हनीमून पे जाना चाहिए। उसके बाद आप और हनीमून पे जाने से पहले आपको पासपोर्ट अपना अपडेट करना पड़ता है, जिससे आपका नाम, आपका स्पाउस का नाम उसमें मेंशन हो जाए। दोनों पासपोर्ट में एक दूसरे के स्पाउस के नाम आ जाने चाहिए। तो वो आप करते हो। आप अपना रेजिडेंस चेंज करते हो, कुछ लोग अपना नाम भी चेंज करते हैं, तो आपको वो सब नाम भी चेंज कर लेना चाहिए। दीज आर द थिंग्स दैट यू वुड टिपिकली डू। इसके साथ साथ मैं आपको कहता हूँ कि आप अपना HUF भी खुलवा लीजिए। क्यों? क्योंकि आप HUF खुलवाते हैं तो आपको साल के 1.5 से 2 लाख रुपए बच रहे हैं। वाह, 1.5 से 2 लाख रुपए। आप यू जस्ट स्टार्टिंग योर लाइफ एंड आपको 1.5-2 लाख रुपए आपको रिबेट मिल रहा है इनकम टैक्स में। वोंट यू वांट टू अवेल इट? Well, I strongly suggest that you should avail it. So this is when to open. Now, how much does it cost? Well, total cost is about 500 rupees. तो आपको 500 rupees, इसमें से प्राइमरी कॉस्ट आपकी आती है, आपको एक रबर स्टैम्प बनवानी पड़ती है, उसकी कॉस्ट आती है, आपको एफिडेविट बनवाती है, उसकी कॉस्ट आती है, और थोड़ी बहुत आपकी 1 digit सर्विसेज एंड कुरियर कॉस्ट भी लेता है। इसके अलावा there isn't much cost. So it is 90% cheaper than opening up a company. The amount of compliance is almost non-existent here compared to having an auditor or audited statements, director seal बनानी पड़ती है, director ID देना पड़ता है. You are liable for any action, inaction or anything that goes wrong in the company. यहाँ पे आपको इतनी सारी कोई भी complications नहीं आती. So I would strongly recommend, if you are eligible, if you can open, and if you've decided that you want to have a freelancing or a small business, please open up a HUF. It is a great tool, utilize it, and you can always later on, as your business scales up and you find that you need to have more investors, you need to have some people from outside the family, then you could go ahead with it. एंड अगर आपको लग रहा है कि अभी आप कॉलेज में हैं या अभी आप योर अर्ली स्टेजेस इन योर लाइफ जहाँ पे आप शादीशुदा नहीं हैं, देन आई वुड से कि talk to your parents, talk to your elder siblings. They might have an HUF. They might be able to open up an HUF for you and help you out. पेरेंट्स के HUF में आप ऑलरेडी मेंबर हो तो आपके लिए और इजी हो जाता है पेरेंट्स के साथ. प्लीज डू इट. सो just to summarize, please open up an HUF. It will give you an income tax rebate. It will give you a new PAN card. It will help you eliminate some of the conflicts of employment that you would be facing, and it is going to save you about 1.5 to 2 lakh rupees every year. So please go ahead, save it. And if you like this video, do share it, do like it, and do subscribe to our channel. Thank you. Bye bye.